صحابہ کرام کو ہمارے سامنے رکھیں۔ مسیح یسوع میں آپ سب کو سلام اور آپ سب کو سبت کا دن مبارک ہو۔ ہم بڑے خوبصورت مہینے میں شامل ہیں، ہولی دسمبر۔ دنیا میں اکثریت میں لوگ اسے پاک مہینہ کہتے ہیں، اس لیے کہتے ہیں کہ اس مہینے میں میرا اور آپ کا خداوند یسوع کنواری مریم کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ ہاللیلویا۔ اور اس دنیا میں آئے، اس دنیا میں تشریف لائے، پیدا ہوئے اور ہمارے لیے نجات کا منصوبہ شروع ہوتا ہے۔ ہاللیلویا۔ اس مہینے کو اس لیے بھی بڑی اہمیت دی جاتی ہے کہ یہ مہینے کا آخری، سال کا آخری مہینہ ہے اور اس کے بعد ایک نیا سال آنے والا ہے۔ اس سال میں جو ہماری مشکلات، پریشانیاں ہیں، خدا اس سال ہی ختم کر دے اور نئے سال میں ہم نئی برکتیں، نئی خوشیاں، نئی بلیسنگز کو ریسیو کرنے والے بنے۔ ہاللیلویا۔ اور ہم اس عید پر، اس بڑے دن پر، بڑا دن اسے اس لیے کہتے ہیں کہ اس دن، بڑے دن کو، اس مہینے کو ایک بڑی ہستی اس دنیا میں آتی ہے۔ حالانکہ موسم کے لحاظ سے، کیلنڈر کے حساب سے یہ پورے سال کا سب سے چھوٹا دن ہوتا ہے، 25 دسمبر، لیکن روحانی طور پر یہ دنیا کے سارے دنوں سے سب سے افضل دن ہوتا ہے، جس دن حضرت عیسیٰ اس دنیا میں پیدائش ہوتی ہے۔ ہاللیلویا۔ تو آئیں ہم دیکھتے ہیں اس میں بہت سارے لوگوں کے بہت سارے کردار ہیں۔ حضرت عیسیٰ کی پیدائش پر بہت سارے لوگوں کے بہت سارے کردار ہیں۔ ہم پہلے دنوں میں جان چکے زکریا جو کاہن ہے اس کے لیے بھی، ہم یوحنا استباغی کے بارے میں بھی، اور آج ہم ان بہت سارے کردار میں سے ایک اور کردار کے بارے میں جانیں گے، اور اس کردار کا نام مقدس یوسف ہے۔ کس کے بارے میں؟ مقدس یوسف ہے۔ اور یہ جو یوسف ہے، یہ کون شخص ہے؟ یہ حضرت داؤد کے گھرانے سے ہے، اور قوم بنی اسرائیل میں یہ یہودا کے قبیلے سے تھا۔ کس میں تھا؟ یہودا کے قبیلے سے تھا اور حضرت داؤد کے گھرانے سے تھا۔ اور بائبل مقدس میں جو یوسف نام آتا ہے، یہ صرف ایک ہی شخص یوسف نہیں ہے، بلکہ بائبل مقدس میں 5 نہیں، 7 نہیں، 8 نہیں، 10 نہیں، بلکہ بائبل مقدس میں 11 یوسف لوگوں کا نام ذکر ہے۔ کتنے لوگوں کا ذکر آتا ہے؟ 11 لوگوں کا، جن کا نام یوسف بائبل مقدس میں آتا ہے۔ اور میری بہنوں، میرے بھائیوں، ان 11 میں سے آج ہم جس یوسف کا ذکر کر رہے ہیں، وہ مقدسہ مریم، جو کنواری مریم، جس کے پیٹ میں سے حضرت عیسیٰ پیدا ہوتے ہیں، یہ اس کا منگیتر تھا۔ یہ کیا تھا؟ اس کا منگیتر تھا، اور اس کا نام یوسف تھا۔ اور یہ جو شخص ہے،
जब हम यूसुफ की बात करते हैं तो जो यूसुफ नाम है, बड़े गौर से सुनिएगा, यूसुफ जो नाम है ये बेसिकली अब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है। किस ज़बान का लफ्ज़ है? कितने लोग मेरी बात को सुन रहे हैं? यूसुफ नाम अक्सर हम क्रिश्चियन भी ये नाम रखते हैं, मुस्लिम भी ये नाम रखते हैं, और भी लोग इस नाम को रखते हैं। क्या नाम? यूसुफ। और यूसुफ जो है ये अब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, और अक्सर हमारे जो मुस्लिम भाई भी नाम रखते हैं मोहम्मद यूसुफ, ऐसे ही। तो इसी तरह जो यूसुफ नाम है ये बेसिकली अब्रानी ज़बान का लफ्ज़ है, और इसका मतलब है कि खुदा अज़ाफ़ा करता है। यूसुफ का मतलब क्या है? खुदा अज़ाफ़ा करता है। और मेरी बहनों, मेरे भाइयों, जब खुदा का बंदा यकूब, हजरत यकूब, उसके 12 बेटे हुए, तो उससे पहले जो उसकी बीवी राखल है उसकी औलाद ना थी, और वो बड़ी खुदा के सामने दलगीर थी, और उसने खुदा के हुजूर दुआ की, ऐ खुदा मुझे औलाद जैसी बरकत दे। तो खुदा ने उसे औलाद दी, और उसने अपने बेटे का नाम यूसुफ रखा, इस सोच के साथ, इस ईमान के साथ कि अब खुदा मुझ पर फजल किया है, मुझे बेटा दिया है, तो अब खुदा मुझे और औलाद दे, मुझे और औलाद दे, और बेटा दे। तो उसने अपने बेटे का नाम क्या रखा? यूसुफ रखा। ये वही हजरत यूसुफ है जिसको उसके भाई क्या करते हैं? कुएं में डाल देते हैं, फिर वही निकाल कर उसे बेच देते हैं। ये वही यूसुफ है जिसको क्या करते हैं? मिस्र में गुलाम बना लेते हैं। ये वही यूसुफ है जिसका नाम उसकी माँ ये सोचकर रखती है कि मेरे बेटे का नाम यूसुफ रखो, ताकि खुदा मुझे और भी औलाद दे। हालेलुया। तो अब ये जो यूसुफ जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये आम यूसुफ नहीं है, बल्कि ये खास यूसुफ है। ये मुकद्दसा मरियम का मंगेतर है। ये कौन है जी? ये मुकद्दसा मरियम का मंगेतर है। तो आओ हम इसके बारे में बाइबल मुकद्दस में से तिलावत करते हैं। मेरे साथ देखिए मत्ती की अंजील, उसका पहला बाब, उसकी 18वीं आयत से लेकर 25वीं आयत मुकद्दसा तक तिलावत करेंगे। बड़े गौर से सुनिएगा। खुदा के कलाम मुकद्दस में यूं लिखा है, अब यीशु मसीह की पैदाइश इस तरह हुई कि जब उसकी मां मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने से पहले वो रूह कुद्दस की कुदरत से हामला पाई गई। बस उसके शोहर यूसुफ ने, जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा किया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदावंद के फरिश्ता ने उसे ख्वाब में दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। इसके बेटा होगा और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वही अपने लोगों को उनके गुनाहों से नजात देगा। ये सब कुछ इसलिए हुआ कि जो खुदावंद ने नबी की मार्फत कहा था वो पूरा हो, कि देखो एक कंवारी हामला होगी और बेटा जनेगी, और उसका नाम अम्मानुएल रखेंगे, जिसका तर्जुमा है खुदा हमारे। बस यूसुफ ने नींद से जागकर वैसा ही किया जैसा खुदावंद के फरिश्ता ने उसे हुक्म दिया था, और अपनी बीवी को अपने यहाँ ले आया, और उसको ना जाना जब तक कि उसके बेटा ना हुआ, और उसका नाम यीशु रखा। सब कहेंगे आमीन। मेरी बहनों, मेरे भाइयों, ये बड़ा खूबसूरत खुदावंद का कलाम जो आज हमने तिलावत किया है,
जरा इस इको को कम कर दीजिए बेटा। मेरी बहनों मेरे भाइयों, ये खुदा का कलाम बताता और सिखाता है कि ये जो शख्स जिसका नाम यूसुफ है, जो मुकद्दसा मरियम का मंगेतर है, अब खुदा इसे चुनता है। ये जो शख्स जिसको चुना गया ताकि ये मुकद्दसा मरियम के साथ इसका लिंक हो, इसके साथ एक रिश्ता जुड़ जाए और ये खुदा के उस बड़े मंसूबे को पूरा कर सके कि जब खुदावंद यीशु मसीह इस दुनिया में आया है तो उसका सारा इंतजाम जो है वो यूसुफ की जिम्मेदारी लगाई गई। कैसे? इसके लिए यूसुफ जो है ये कोई बहुत अमीर शख्स नहीं था, बल्कि क्या था? एक गरीब शख्स था। क्या था? एक गरीब शख्स था। और ये कोई बहुत पढ़ा लिखा शख्स नहीं था, बल्कि ये अनपढ़ों की हालत में आता है। और ये क्या करता है? ये मजदूर है। क्या है ये मजदूरी करता है। बाइबल मुकद्दस बताती है कि ये बढ़ई का काम करता है। बढ़ई किसे कहते हैं? जो तरखान होते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, जिसे हम लोहार भी कहते हैं। क्या करते हैं? जो लोहार होते हैं, जो लकड़ी का काम करते हैं, जो चारपाइयां बनाते हैं, टेबल कुर्सियां फर्नीचर का काम करते हैं। और ये जो हजरत मुकद्दस यूसुफ है ये बढ़ई का काम करता है और खुदा ने इसे चुन लिया। हालेलुया! खुदा ने इसे चुन लिया। इस बात के लिए नहीं कि ये रास्तबाज नहीं है, इस बात के लिए नहीं चुना कि ये गरीब है, इसलिए नहीं चुना कि ये बढ़ई का काम करता है, इसलिए बात नहीं कि ये अमीर है। इन बातों को खुदा ने नहीं देखा, बल्कि उसकी एक बात को खुदा ने देखा है कि यूसुफ है, ये जो शख्स है, इसलिए से चुना गया कि ये रास्तबाज है। क्या है? रास्तबाज किसे कहते हैं? रास्तबाज उस शख्स को कहते हैं जो खुदा के खौफ में रहता है, जो खुदा के डर में रहता है, जो खुदा के साथ जुड़ा रहता है, जो खुदा के खौफ में रहता है, जो खुदा की इबादत करने वाला शख्स है, जो खुदा के हुक्मों पर अमल करने वाला शख्स है, जिसकी जिंदगी में गुनाह नहीं पाया जाता, जिसकी जिंदगी में कोई ऐसा ऐब नहीं पाया जाता, जो हमेशा खुदावंद के साथ चलने वाला शख्स होता है, उसे क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है? रास्तबाज। जो सही राह पर चलने वाला हो, जो ईमानदारी की राह पर चलने वाला हो। और यूसुफ क्या लिखा है कि वो क्या था? वो रास्तबाज था। और मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदा का कलाम बताता और सिखाता है कि वो रास्तबाज है, इसलिए खुदा ने उसे चुन लिया ताकि खुदा के इस बड़े मंसूबे को जाहिर कर सके। मेरी बहनों मेरे भाइयों सुनो। और अब खुदा क्या करता है? जब इसे पता चलता है कि इसकी मंगेतर जो है, इसके मंगेतर कौन है? कौन है? यूसुफ की, हजरत यूसुफ की जो मंगेतर है वो मुकद्दसा मरियम है। और जब इसे पता चलता है कि मेरी मंगेतर शादी से पहले ही क्या है? हामला है, उसके पेट में बच्चा है, तो वो बड़ा परेशान हो जाता है, वो बड़ा घबरा जाता है। और खुदा का कलाम बताता और सिखाता है, वो उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा करता है। क्या इरादा करता है? चुपके से, किसी को पता ना चले कि क्यों मैंने उनको ये रिश्ता छोड़ दिया है, मैंने उससे इनकार कर दिया है, चुपके से। और खुदा का कलाम बताता और सिखाता है कि ये बहुत बड़ी उसके अंदर रास्तबाजी जाहिर होती है। तो अगर साढ़े वर्गा होता तो की करता? उन्हें बहुत ज्यादा बदनाम करता। देखो मैं बहुत अच्छा हूं पर ये मरियम अच्छी, इसने कोई ऐब किया है, इसने कोई गुनाह किया है, इसका किरदार अच्छा नहीं। और रास्तबाजी जाहिर करता है, खुदा के साथ चलने की बात करता है। और आज बहुत सारे लोग अपने आप को बहुत हाजी नमाजी कहते हैं, अपने आप को बड़ा ईमानदार कहते हैं, अपने आप को बड़ा, लेकिन कभी वो दूसरों के गुनाह को छुपाने की कोशिश,
वो दूसरे के लोगों के गुनाहों को देखकर उनको छालते हैं। और पंजाबी च कहते ने कि वो किस तरह, पंजाबी में किस तरह, छाछ च पा के छटाते हैं। इसी तरह आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे की बदनामी देकर बड़े खुश होते हैं। बदनामी की गुनाह नाम ही होते, बहुत सारे लोग गुनाह पा देते हैं, गुनाह जाहिर कर देते हैं। मेरी बहनों मेरे भाइयों, आज बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक दूसरे को बदनाम करके खुश होते हैं, एक दूसरों के गुनाह जाहिर करके खुश होते हैं। पर जो रास्तबाज लोग हैं, जो ईमानदार लोग हैं, वो किसी को इसी तरह बदनाम। ये सबसे मसाल खुदा का बंदा यूसुफ की जिंदगी में आती है। क्या लिखा है, खुदा का कलाम बताता और सिखाता है, बस उसके शौहर यूसुफ ने जो रास्तबाज था और उसे बदनाम करना नहीं चाहता था, उसे चुपके से छोड़ देने का इरादा कर लिया। वो इन बातों को सोच ही रहा था कि खुदा उनके फरिश्ता ने उसे ख्वाब में आकर दिखाई देकर कहा, ऐ यूसुफ इब्ने दाऊद, अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से ना डर, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। हालेलुया, ये कौन गवाही दे रहा है? ये खुदा, और खुदा का फरिश्ता अब यूसुफ की ख्वाब में आता है। अब वो प्रोग्राम बनाता है, उसका प्लान ये है कि अपनी मंगेतर के साथ रिश्ता खत्म कर दूं, उससे अलहदगी कर लूं, और मैं उसके साथ नहीं रहने वाला, क्योंकि वो क्या है, वो कुंवारी होकर उसके पेट में बच्चा है, वो हामला है, इसका किरदार सही नहीं है। पर अब खुदा अपनी बंदी के लिए, मकदसा मरियम के लिए उठ खड़ा होता है और अपने फरिश्ता को भेजता है और कहता है, जा यूसुफ से कह दे, तू क्यों इल्जाम लगाता है मकदसा मरियम पर, उसमें कोई ऐब नहीं है। जो उसके पेट में बच्चा है वो किसी आदमी के मलाप से नहीं है, बल्कि वो रूह कुद्दस की कुदरत से है। हालेलुया। ये कौन गवाही देता है? खुदा खुद गवाही देता है कि जो उसके पेट में बच्चा है वो किसी इंसान के खून के लोथड़े से नहीं है, बल्कि वो रूह कुद्दस की कुदरत से हुआ है। और अब तू, तेरी मंगेतर है, तू उसे अब अपने घर ले आ। क्या लिखा है? ख्वाब में दिखाई दिया, कहा है यूसुफ इब्ने दाऊद अपनी बीवी मरियम को अपने यहाँ ले आने से, क्योंकि जो उसके पेट में है वो रूह कुद्दस की कुदरत से है, और उसके बेटा होगा, और तू उसका नाम क्या रखना? उसका नाम यस्सु रखना। और यस्सु का मतलब भला क्या है? हालेलुया। यस्सु का मतलब है निजात देने वाला, छुड़ाने वाला, बचाने, शिफा देने वाला, और हर तरह की बीमारियों पर इख्तियार रखने वाला। इसलिए लोग उसे मसीहा कहते हैं। हालेलुया। इसलिए लोग उसे मसीहा कहते हैं, जिसके सामने कोई नूरी इल्म, उसके सामने कोई काला इल्म, उसके सामने कोई पीला इल्म, उसके सामने कोई तवीज, कोई जादूगर उसके सामने ठहर नहीं सकते। इसलिए कि तुम उसका नाम यस्सु रखना, जिसका मतलब है कि निजात देने वाला। खाली बीमारियों से शिफा नहीं देने वाला, खाली बीमारियों से निजात नहीं देने वाला, बल्कि आपके सारे गुनाहों से भी आपको रहाई देने वाला है। हालेलुया। इसलिए जो मसीह यस्सु पर ईमान रखते हैं, उनको जानवरों की कुर्बानियां देने की जरूरत नहीं आती। इसलिए मसीही लोग जानवरों की कुर्बानी नहीं देते, क्योंकि उन्हें पता है कि उनके लिए निजात देने वाले ने वो पाक कुर्बानी दे दी है, और अब हमारे लिए इन जानवरों की कुर्बानी की कोई अहमियत। हालेलुया। और मेरी बहनों मेरे भाइयों, खुदा का कलाम बताता और सिखाता है, ये जो खुदा का बंदा यूसुफ है, इसके साथ खुदा हम कलाम होता है। और कैसे? ख्वाब के जरिए से। कैसे? ख्वाब के जरिए से। और जब हम ख्वाब के बारे में जानते हैं, तो ख्वाब में जो कलाम होता है, बहुत सारी कौमें, बहुत सारे कबीले, बहुत सारी नस्लें, बहुत सारे ईमान, बहुत सारे मजहब इस पर बिलीव करते हैं। ऐसे ही
जो यहूदी लोग हैं वो भी ख्वाब पर बिलीव करते हैं कि जो ख्वाब खुदा की तरफ से आता है वो खुदा का पैगाम होता है। और बहुत सारे लोग, थोड़ा सा रास्ता बेटा दीजिएगा ताकि ना पीछे आने वाले लोगों को जगह मिल सके, बड़े गौर से सुनिएगा। और बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बहुत सारे लोग इस बात पर बिलीव करते हैं कि जो ख्वाब है, इसमें बहुत सारे लोग इस पर बिलीव करते हैं कि जो खुदा की तरफ से होता है। हमारे मुसलमान भाई भी इस पर बिलीव करते हैं कि जो ख्वाब खुदा दिखाता है उसका ये खुदा की तरफ से भी ये कलाम होता है। मसीही लोग भी इस पर बिलीव करते हैं। क्यों? कि जो खुदा क्या करता है, वो जो जागते हुए भी कलाम करता है। और पीछे जगह है भाई, जरा बैठ जाएगा, थोड़ा सा पीछे चले जाए ताकि पीछे जगह हो जाए। ये दरवाजा भी खोल दीजिए ताकि सारे लोग जो बाहर बैठे हैं उनको भी नजर आए। आज मुझे पता थोड़ी ठंड ज्यादा है, लेकिन कोई बात नहीं, खुदा मौसमों का खुदा है और हमारी क्या करता है, हिफाजत करता है। हालेलुया। अब बड़े गौर से सुनिए, ख्वाब की बात कर रहे हैं, क्योंकि बहुत सारे मजहब क्या करते हैं, इस ख्वाब पर बिलीव करते हैं जो ख्वाब खुदा की तरफ से आता है। और ख्वाब तीन किस्म के आते हैं। पहला ख्वाब जो आता है वो आम रूटीन में जो हम सारा दिन काम करते हैं, जो हम सारा दिन बोलते हैं, वो हम लोग तो मिलते हैं, ड्यूटी करते हैं, और वो जब हम सोते हैं तो शाम को फिर वही रात को वो सारा मंजर चलना शुरू हो जाता है और हमें ख्वाब आ रहा होता है, हम सो रहे होते हैं। दूसरा ख्वाब जो होता है वो इब्लीस की तरफ से होता है। वो कब आता है? जब हम ख्वाब देख रहे होते हैं और हम डर रहे होते हैं, हमें खौफ आ रहा है, हमारे सामने बदरूहें आ रही होती हैं, हमारे सामने सांप आ रहे होते हैं, हमारे सामने कब्रें आ रही होती हैं, हमारे सामने मुख्तलिफ मौत और डर और खौफ, मुख्तलिफ तरह के जो मुख्तलिफ ख्वाब आते हैं। ये ना तो दुनियावी ख्वाब है, ना ये खुदा की तरफ से, ये इब्लीस की तरफ से ख्वाब होते हैं। समझ आ रही? तीसरा ख्वाब जो आता है, तीसरी किस्म का तीसरा जो ख्वाब हमें आता है वो खुदा की तरफ से आता है, और वो मुख्तलिफ तरीकों से खुदा हमसे हम कलाम होता है। मुख्तलिफ तरीकों से खुदा जो हमें जागते हुए हमसे कलाम करता है, वो सोते हुए नींद में भी हमसे क्या करता है, कलाम करता है। इसलिए गज़ल और गज़लात की किताब में मुक़द्दस में लिखा है, मैं सोती हूँ मगर मेरा दिल। ईमानदार जो है, रास्तबाज जो है, वो जागते हुए भी खुदा की हजूरी में होते हैं और सोते हुए भी खुदा जागते हुए भी उनसे कलाम करता है, और जब वो सोते हैं, आराम करते हैं, तो भी खुदा उनसे कलाम करता है। क्योंकि उसके बारे में लिखा है, उस खुदा की तारीफ के बारे में लिखा है, वो अपने महबूब को नींद देता है। हालेलुया। और यहाँ पर जब यीशु मसीह की पैदाइश होती है और मुक़द्दसा मरियम के पेट से एक बच्चा पैदा होता है, तो उसकी उस वक्त में इस ईद पर क्या होता है, मुक़द्दसा मरियम का जो मंगेतर जो हजरत यूसुफ है, उसके साथ खुदा 4 दफा हम कलाम होता है। और कैसे होता है? ख्वाब के जरिए से। कैसे होता है? ख्वाब के जरिए से। पहली दफा जो हमने अभी तिलावत किया है, जब उसे पता चलता है कि उसकी मंगेतर हजरत मरियम जो है वो हामला है, उसके बेटा है, उसके पेट में बच्चा है, तो उसे छोड़ देने का इरादा करता है। तो खुदा ख्वाब में उसके साथ हम कलाम होता है और कहता है, ए यूसुफ, मेरी बंदी मुक़द्दसा मरियम पर इल्जाम ना लगा। जिसके पेट में बच्चा है वो किसी इंसान के खून के लोथड़े से नहीं, वो किसी हरामकारी के सबब से नहीं, बल्कि वो रूह कुद्दस की कुदरत से उसके पेट में बच्चा है। अब तो अपनी बीवी को अपने हाथ ले आने से ना डर, अब तू उसे अपने पास अपने घर ले जा, क्योंकि अब तेरा वो सारा मंसूबा जो खुदा का मंसूबा है तेरे सबब से वो पूरा करेगा। और वो अपनी बीवी को, अपनी मंगेतर को अपने पास घर ले आया, और लिखा है, और उसको ना जाना जब तक वो उसके बेटा ना हुआ। कहा ना जाना? उसे अपनी बीवी ना जाना
اس کے پاس نہ گیا، کہ جو اس کے پیٹ میں ہے وہ روح القدس کی قدرت سے پیدا ہونے والا نبی ہے، جس کا نام یسوع ہے، جس کا نام حضرت عیسیٰ ہے۔ ہاللیلویہ۔ اور پھر دوسری دفعہ پھر خدا اپنے بندہ یوسف سے ہم کلام ہوتا ہے، تب ہم کلام ہوتا ہے، تب جب خدا کا کلام بتاتا ہے کہ جب یسوع مسیح پیدا ہوتا ہے تو اس وقت جو بادشاہ ہیرودیس بادشاہ ہے، جب اسے پتہ چلتا ہے تو اس نے اعلان کر دیا کہ اس علاقہ کے سارے بچوں کو ہلاک کر دیا جائے جو 2 سال سے کم بچے ہیں۔ تو خدا پھر ہم کام ہوتا ہے حضرت یوسف سے اور کہتا ہے اپنی بیوی کو، اپنی منگیتر کو، مریم کو اور اس بچے کو، حضرت عیسیٰ کو جو بچہ ہے اسے لے کر مصر میں چلا جا، کیونکہ یہاں پر اس بچے کی موت کا ڈر ہے۔ اور اسے کہاں لے گئے؟ حضرت یوسف کہاں لے گیا؟ مصر میں لے گیا، اور مصر میں ٹھہرا رہا۔ اور پھر جب ہیرودیس بادشاہ مر گیا، فوت ہو گیا، تو پھر خدا کیا کہتا ہے اب واپس اسرائیل چلا جا۔ اور پھر وہ واپس کیا جاتا ہے، وہ اسرائیل میں جاتا ہے اور وہاں پر ڈر جاتا ہے اور آگے ناصرت نہیں جاتا۔ کہاں نہیں جاتا؟ ناصرت نہیں جاتا۔ اور اس لیے نہیں جاتا کیونکہ اسے خوف ہے کہ ہیرودیس تو مر گیا ہے پر اس کا بیٹا زندہ ہے، اور اس کا بیٹا میرے بچے کو، اس حضرت عیسیٰ کو قتل نہ کر دے۔ اور وہ کیا کرتا ہے؟ وہ رک جاتا ہے۔ پھر خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے، پھر خواب میں خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے، اپنے فرشتہ کے ذریعہ سے کہتا ہے تو نہ ڈر اور اسے ناصرت میں لے جا، کیونکہ خدا کا وہ کلام پورا ہو جائے کہ وہ یسوع ناصری کہلائے گا۔ ہاللیلویہ۔ وہ کیا کہلائے گا؟ وہ یسوع ناصری کہلائے گا، اور وہ کلام پورا ہوگا۔ اور اس لیے میری بہنوں میرے بھائیوں 4 دفعہ خدا اپنے بندہ کے ساتھ خواب میں ہم کلام ہوا۔ کس کے ساتھ؟ حضرت عیسیٰ کے ساتھ، حضرت یوسف کے ساتھ، تاکہ خدا کا وہ منصوبہ پورا ہو جائے، وہ پیشنگوئیاں پوری ہو جائیں۔ پہلی دفعہ تب جب وہ مقدسہ مریم کے پیٹ میں بچے کے بارے میں جانتا ہے، اور پھر جب وہ بچہ ڈیلیور ہو جاتا ہے، پھر خدا اسے مصر میں لے جاتا ہے، اور پھر تیسری دفعہ تب پھر وہ کلام، وہ پیشنگوئی پوری ہوتی ہے۔ خدا کہتا ہے میرا بیٹا مصر سے آئے گا۔ ہاللیلویہ۔ وہ کہاں سے آئے گا؟ وہ مصر سے آئے گا۔ اور یہ پیشنگوئی خدا پوری کرتا ہے۔ اور چوتھا پیشنگوئی تب پوری ہوتی ہے جب وہ ناصرت میں جاتا ہے اور وہ یسوع ناصری کہلاتا ہے۔ ہاللیلویہ، ہاللیلویہ۔ میری بہنوں میرے بھائیوں، یہ خواب جو ہیں یہ ایمانداروں کے ساتھ جو آتے ہیں ان کی بڑی اہمیت ہے، ان کی بڑی اہمیت ہے۔ اس لیے میری بہنوں میرے بھائیوں بائبل مقدس میں بہت سارے لوگوں کو خواب آتے ہیں، اور خدا کیا کرتا؟ ان خوابوں کا جواب دیتا ہے۔ ہاللیلویہ۔ کیا کرتا ہے خدا؟ ان کے خوابوں کا جواب دیتا ہے۔ اور بائبل مقدس میں لکھا ہے ابراہیم کو اور سارا کے دور میں بھی کیسا ہی خواب کا کام ہوتا ہے۔ خدا کا کلام بتاتا اور لکھا ہے ابراہیم اور سارا جب ایک ایسے ملک میں جس ملک کا نام جرار تھا۔ ابراہیم کس ملک میں گیا؟ اس کی بیوی سارا کہاں پر گئے؟ جرار کے اس ملک میں۔ اور اس ملک کے بادشاہ کا نام ابی ملک تھا۔ اور اس بادشاہ کی بری زندگی یہ تھی کہ جب کوئی عورت یا کوئی لڑکی اسے پسند آ جاتی، اگر اس کا شوہر تھا تو اسے قتل کر دیتا اور اسے اپنی بیوی بنا لیتا۔ اور بائبل مقدس بتاتی ہے کہ سارا بڑی خوبصورت تھی۔ ابراہیم کی بیوی سارا کیا تھی؟ بڑی خوبصورت تھی۔ اور خدا کا کلام بتاتا اور سکھاتا ہے جب وہاں کے لوگوں نے دیکھا کہ سارا بڑی خوبصورت ہے تو وہ جا کر بادشاہ سے کہتے ہیں اے بادشاہ ہمارے ملک میں ایک ایسی بڑی خوبصورت عورت آئی ہے، اور اس کے ساتھ ایک مرد بھی ہے، پر پتہ نہیں اس کا رشتہ اس کے ساتھ کیا ہے۔ جب اسے بلایا گیا، ان کو بادشاہ کے سامنے پیش کر دیا گیا، تو ابراہیم سے پوچھا گیا ابراہیم یہ جو عورت تیرے ساتھ ہے یہ تیری کیا لگتی ہے؟ تو ابراہیم کہتا ہے بادشاہ یہ میری بہن لگتی ہے۔
کیا کہا؟ یہ میری بہن لگتی یہ میری بہن ہے. سارا سے پوچھا ہے سارا یہ جو مرد تیرے ساتھ ہے تیرا کیا لگتا ہے؟ اس نے کہا بادشاہ یہ میرا بھائی ہے. اس نے کہا اچھا کیوں انہوں نے ایسا کیا؟ اس خوف سے کہ کہیں بادشاہ ابراہیم کو قتل نہ کر دے. اور جب بادشاہ سارا کو اپنے پاس لے گیا اپنے محل میں لے گیا تو جب بادشاہ جس بادشاہ کا نام ابھی ملک ہے لکھا ہے کہ جب وہ اپنے بیڈ پر سو رہا تھا تو لکھا ہے خواب میں خدا اس بندہ کے ساتھ اس بادشاہ کے ساتھ ہم کلام ہوا. اس نے کہا اے بادشاہ ابھی ملک تو نے بہت بڑا گناہ کیا ہے کہ تو نے میرے مقدس راسباز ابراہیم کی بیوی کو تو نے کھینچ لایا اور چھین لی. اس نے کہا خدا میں نے کیوں ایسا کیا ہے؟ میں ایسا نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے تو ان سے پوچھا تھا کہ یہ تیری کیا لگتے ہے. اس نے کہا یہ میری بہن ہے. اس نے کہا تیرے خوف اور ڈر سے کہا تھا حالانکہ وہ اس کی کیا ہے؟ بیوی ہے. اس کو تو چھونا نہیں ہے, تو نے اس کے پاس نہیں جانا ہے. اس کی بیوی اس کو واپس کر دے. اگر تو نہیں کرے گا تو تو نسل در نسل ہمیشہ کے لیے ہلاک ہو جائے گا. اور وہ بھی ملک کیا کرتا ہے؟ خدا کے خوف میں آ کر اور ابراہیم کو اس کی بیوی سارا واپس لوٹا دیتا ہے. ہاللیلویہ ہاللیلویہ ہاللیلویہ. میری بہنوں میرے بھائیوں خدا اپنے راست باز لوگوں کے لیے خواب کے ذریعہ بھی بڑے بڑے کام کر دیتا ہے. ہاللیلویہ. اور خدا کا کلام بتاتا اور سکھاتا ہے. ہم بات کر رہے تھے یوسف کی, اس یوسف کی جو یعقوب کا بیٹا ہے اور جس کے بھائی اسے بیچ دیتے ہیں اور پھر وہ بک کر مصر میں چلا جاتا ہے اور مصر میں وہاں پر قید میں چلا جاتا ہے. اس قید میں جب خدا اس سے ہم کلام ہوتا ہے اور وہاں پر اس کے ساتھ ایک اور قیدی ہے, اسے خواب آتا ہے اور اسے خواب آتا ہے اور یوسف کیا کرتا ہے؟ اس خواب کی تعبیر بتاتا ہے کہ دیکھ کل جو تیرے ساتھ تھا اس کو پھانسی ہو جائے گی پر تو اپنے عہدے پر واپس چلا جائے گا. تو بادشاہ کا ساقی ہے, تو بادشاہ کا جو ہے وہ مشروب پلانے والا واپس اپنے عہدے پر چلا جائے گا. پر جب تو بادشاہ کے اس عہدے پر جائے گا تو مجھے بھی یاد رکھنا. پر اسے یاد نہیں کرتا. اور ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ جو مصر کا بادشاہ فرعون بادشاہ اسے خواب آتی ہے. خواب کیا دیکھتا ہے کہ 5 بڑی گائے ہیں, 7 بڑی صحت مند گائے اور مضبوط ہیں اور 7 دبلی سکڑی ہوئی گائے ہیں. وہ آتی ہیں اور آ کر صحت مند گائے کو کھا جاتی ہیں. فرعون بادشاہ بڑا پریشان ہوتا ہے اور کہتا ہے یہ کیسا خواب ہے. وہ بڑے سارے اپنے کسدیوں کو, بہت سارے نجومیوں کو, بہت سارے علم والوں کو بلاتا ہے اور کہتا ہے یہ جو خواب آیا ہے اس کا کیا تعبیر ہے مجھے بتاؤ. کہتا ہے مجھے بتاؤ یہ تعبیر اس کی کیا ہے اس خواب کی. پر کوئی بھی اس خواب کی تعبیر نہ بتا سکا. تو پھر اس ساقی کو یاد آتا ہے کہ ایک قیدی ہے جو کہاں پر ہے, ایک قیدی ہے جو کہاں پر ہے, جو قید میں ہے, جو آپ کے خواب کی تعبیر بتا دے گا. اس نے کہا اسے بلاؤ. تو پھر حضرت یوسف کو بلایا گیا اور کہتا ہے اے یوسف یہ مجھے خواب آئی ہے, مجھے اس کی تعبیر بتا دے. اس نے کہا وہ خدا جو سارے رازوں کو جانتا میں اس کے سامنے دعا کرتا ہوں. اور پھر وہ اس خواب کی تعبیر بتاتا ہے. کہتا ہے بادشاہ دیکھ تو نے جو 7 صحت مند موٹی گائے دیکھی ہیں وہ 7 سال ہیں. وہ کیا ہے؟ وہ 7 سال ہیں. اور جو تو نے بالکل دبلی اور پتلی اور سکڑی ہوئی گائے دیکھی ہیں وہ بھی 7 سال ہیں. جو صحت مند 7 سال گائے دیکھی ہیں وہ 7 سال تیری بہت سال کیا ہوں گی, صحت مند فصلیں ہوں گی, بہت زیادہ اناج ہوگا. پر جو 7 سال سوکی تو نے 7 گائے دیکھی وہ 7 سال قحط کے سال ہیں. کتنے سال؟ 7 سال. بہت سارا اناج ہوگا, بڑی فصلیں ہوں گی, پر 7 سال قحط ہوگا اور بہت سارے لوگ بھوکے مریں گے. پر بادشاہ
अगर तू चाहता है कि इसके लिए तेरा भला हो जाए तो तू किसी अच्छे अक्लमंद शख्स को ये मुकर्रर कर दे ताकि वो क्या करे, 7 साल जो अनाज हो वो जमा कर ले, ताकि 7 साल कहत के जो आने वाले हैं उनमें वो सारा इंतजाम कर सके। उसने कहा, यूसुफ तुझसे अक्लमंद और कौन शख्स हो सकता है? मैं जानता हूं कि तुझ में खुदा का रूह काम करता है और जो तू काम करेगा कोई और काम नहीं कर सकता। इसे कैद से निकालो और अब ये मुल्क मिस्र का हाकिम ठहराया जाए। हालेलुया। क्या होगा? ये मुल्क मिस्र का हाकिम ठहराया जाए। और खुदा का कलाम बताता और सिखाता है, इस भेद में बड़ी कमाल की बात है मेरी बहनों मेरे भाइयों, वो जो यूसुफ क्या होता है, जो बिक कर जाता है और कैद में चला जाता है, फिर वो हाकिम बनता है। इस ख्वाब में भी बड़ा भेद है। और भेद क्या है? भेद ये है कि मेरा और आपका खुदावंद यस्सु भी कितने पैसों में बिका? 30 सिक्कों में। हालेलुया। वो भी 30 सिक्कों में बिक गया और फिर वो भी कैद में जाता है, यीशु मसीह भी कैद में जाता है और फिर वही हाकिम ठहरता है और यीशु मसीह भी फिर 1000 साल बादशाही करता है। हालेलुया। हालेलुया। मेरे बहनों मेरे भाइयों, खुदा का कलाम आखिरी हम बात सुनने वाले हैं, इसके बाद हम दुआ करने वाले हैं। बड़े गौर से सुनिएगा। लिखा है दानिएल की किताब मुकद्दस में, नबूकदनेस्सर बादशाह उसको ख्वाब आता है और वो ख्वाब देखकर बड़ा परेशान होता है कि नबूकदनेस्सर बाबुल का बादशाह, और बाबुल अब मौजूदा उसका नाम क्या है? बाबुल उस वक्त उसे बाबुल कहा जाता था, पर अब उसका मौजूदा दौर पता क्या है? इराक और ईरान। अब इसे इराक और ईरान कहा जाता है, पर पुराने दौर में इसका असल नाम क्या है? बाबुल। जिस तरह अब फैसलाबाद को फैसलाबाद कहा जाता है, पर असल इसका पुराना नाम क्या था? लालपुर। तो इसी तरह ये जो इराक और ईरान है, इसका असल नाम क्या है? क्या है? बाबुल। और ये बाबुल का बादशाह है। उस वक्त ये सारे बुत परस्त लोग थे और खुदा का कलाम बताता और सिखाता है कि उस वक्त नबूकदनेस्सर बादशाह को ख्वाब आया और उसने बहुत सारे लोगों को बुलाया, बहुत सारे अपने हुकूमत के लोगों को बुलाया और कहा, ये जो मुझे ख्वाब आया है, ये ख्वाब की तबीर मुझे बताओ। तो आकर लोगों ने कहा, बादशाह बता क्या ख्वाब है? उसने कहा, ऐसे तबीर नहीं मैं पूछूंगा। कैसे पूछनी है? जो ख्वाब मुझे आया है वो तुम कि मुझे ख्वाब क्या आया है। समझ आ रही? कि जरा ख्वाब मैनू आया, मिसाल तौर पर मैं राती ख्वाब देखना ते आकर मैं इन्होंने भैनों नूं भाइयों नूं पुछना दसो मैनू ख्वाब की आया है, लोग परेशान हो जाएंगे। क्या कहता ख्वाब है? एक कहती तबीर। उसने कहा, हाँ अगर मैं तुमको बता दिया कि मुझे ये ख्वाब आया तो तुम कुछ ना कुछ टालो मटोल कर लोगे, कुछ ना कुछ तुक्का ला लोगे कि बादशाह दी तबीर है वे, मैनू मुतमिन कर लोगे। पर मैं उहदे तो मुतमिन होवांगा जिहड़ा की करेगा, जिहड़ी ख्वाब मैनू आई है खुद नूं पता चल जाएगा कि मैनू ख्वाब की आई है। हालेलुया। अब पूरे मुल्क में कोई भी ऐसा शख्स ऐसा ना था जो क्या कर सका, जो उस ख्वाब की तबीर बता सका। पर वहां पर एक ऐसा खुदा का बंदा है जिसका नाम दानिएल है। हालेलुया। हजरत नबी दानिएल नबी आकर कहता है, ऐ बादशाह मैं तेरे ख्वाब की तबीर बताता हूं। हालेलुया। वो कहता बता, कहता मुझे कुछ टाइम चाहिए, कुछ दिन चाहिए। वो दुआ में ठहर गया, वो रोजे में ठहर गया, अपनी टीम को लेता है और दुआ में ठहरता है और कहता है, खुदा मुझे इस ख्वाब की तबीर बता दे, किस बादशाह ने क्या ख्वाब देखा है, उस ख्वाब की तबीर बता दे। खुदा कहता है, जा मैं तेरे साथ हम कलाम हूंगा, मैं वो भेद जाहिर कर दूंगा, मैं वो सारी बातों को जाहिर कर दूंगा, देख अब तू जा। जब दानिएल बादशाह के सामने जाता है और जाकर कहता है, बादशाह आजा, मुझे पता चल गया तूने क्या ख्वाब देखी है। उसने कहा बता। उसने कहा, बादशाह तूने देखा एक बहुत बड़ी इमारत है, एक बहुत सारी क्या है? इमारत है।
عمارت سے مراد یہ ہے کہ بہت بڑی جو ہے وہ بڑا بت ہے. کیا ہے؟ ایک بہت ساری بت بنا تو نے دیکھا ہے اور بہت سارا اس پر کیا ہے سونے کا اس کا سر بنا ہوا ہے. اس کا جو باقی نیچے حصہ ہوا ہے جو سینہ ہے اس کا وہ پیتل کا ہے اور اس کے جو نیچے ہیں ٹانگیں ہیں وہ کیا ہے وہ لوہے کی ہیں اور جو اس کے پاؤں جو ہیں وہ مٹی کے بنے ہوئے ہیں. بادشاہ سے کہا بادشاہ تو نے یہی خواب دیکھا ہے. اس نے کہا حقیقت میں نے یہی خواب دیکھا ہے پر میں پریشان ہوں یہ خواب کی تعبیر کیا ہے. اس نے کہا بادشاہ سن جو تو نے خواب دیکھے اس کی تعبیر یہ ہے کہ جو اوپر والا سر جو تو نے سونے کا دیکھا ہے وہ تو ہے اور تیری حکومت ہے اور جو تو نے یہ پیتل کا دیکھا ہے یہ تیری دوسری حکومت ختم ہو جائے گا اور دوسری حکومت آ جائے گی اور وہ پیتل کی ہوگی. اور پھر جو تو نے نیچے دیکھا ہے جو لوہے کی ہے وہ بھی پیتل کی حکومت کی ختم ہو جائے گی اور جو دوسری حکومت آئے گی وہ لوہے کی ہوگی اور ایک وقت آئے گا وہ بھی ختم ہو جائے گی اور پھر وہ مٹی کی آ جائے گی اور پھر وہ مٹی میں مل جائے گی اور پھر ایک خواب تو نے ساتھ یہ دیکھا ہے کہ ایک بڑا پتھر آتا ہے اور آ کر قائم ہو جاتا ہے. اس نے کہا ہاں میں نے یہ دیکھا ہے. اس نے کہا وہ پتھر ہمیشہ قائم رہے گا اس پتھر کی بادشاہی ہمیشہ قائم رہے گی اور وہ پتھر کون ہے وہ پتھر وہی ہے جس کو مماروں نے رد کیا وہی کونے کے سرے کا پتھر ٹھہرا اور وہ پتھر میرا اور آپ کا خداوند یسوع ہے. وہ آسمان پر جائے گا اور پھر آ کر 1000 سالہ بعد شاہی کرے گا. آمین. ہاللویا. میری بہنوں میرے بھائیوں خواب کے ذریعہ سے جو کلام ہوتے ہیں وہ بڑے قیمتی ہوتے ہیں پر وہ خواب جو خدا کی طرف سے آتے ہیں. اب ہم راست باز نہیں ہیں دنیا دار ہیں تو ہمیں دنیا داری کے خواب آئیں گے. اگر ہم بت پرستی کرنے والے ہیں اگر ہم جادوگر ہیں جادوگروں کے ساتھ چلنے والے ہیں تو ہمیں جادوگری اور ابلیس جب ہماری زندگی میں گناہ ہوتا ہے تو پھر ابلیسی خواب آئیں گے. پر جب ہم خدا کے ساتھ چلنے والے لوگ ہیں راست باز ہیں خدا کا خوف ماننے والے ہیں خدا سے ڈرنے والے ہیں اس کی عبادت کرنے والے ہیں تو پھر خدا ہم سے ہم کلام ہوتا ہے. ہاللیلویا ہاللیلویا. میری بہنوں میرے بھائیوں یسوع مسیح کی پیدائش پر خالی یوسف کو خواب نہیں آیا بلکہ اور بھی لوگوں کو خواب آیا ہے. کس کس کو آیا ہے؟ لکھا ہے ان مجوسیوں کو خواب آیا. جب وہ ہیرودیس بادشاہ سے مل کر آئے تو یسوع مسیح کے سامنے وہ تحفے رکھ کر گئے تو پھر خدا اپنے لوگوں کے ساتھ ہم کلام اور خواب میں ہم کلام ہوا. کیا کہا؟ واپس ہیرودیس کے رستے نہ جانا بلکہ دوسرے رستے سے واپس اپنے ملک کو چلے جانا. اور میری بہنوں میرے بھائیوں یسوع مسیح کی اس پیدائش پر اور بھی لوگوں کو خواب آیا. اس شمعون کو جس نے یسوع مسیح کو مخصوص کیا تھا اس کو صاحب خدا کیا کرتا ہے ہم کلام ہوتا ہے. اور یسوع مسیح کی پیدائش پر حضرت عیسیٰ کی پیدائش پر کیا ہوتا ہے ایک اور بھی خواب آتا ہے اور وہ کس کو خواب آتا ہے وہ پلاطوس کی بیوی کو خواب آتا ہے. جب اس کا شوہر وہ بادشاہ پلاطوس جب یہودیوں کے کہنے کے مطابق یسوع مسیح کو سزائے موت اس صلیب پر چڑھانے کے لیے تیار ہو جاتا ہے تو اس کی بیوی کہتی ہے اے بادشاہ پلاطوس یہ گناہ تجھ پر آنا ہے کیونکہ یہ بے گناہ ہے اس نے کوئی گناہ. اس لیے پلاطوس اپنے ہاتھوں کو دھوتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سزا مجھ پر نہیں بلکہ یہ گناہ تم پر ہے. میری بہنوں میرے بھائیوں یہ کرسمس جو ہے جو بڑا دن ہم مناتے ہیں جو عید ہم مناتے ہیں یہ ہمیں خالی انجوائمنٹ کی عید نہیں ہے بلکہ یہ عید ہمیں راست باز بنانے کے لیے آتی ہے. کیا بنانے کے لیے؟ راست باز ایماندار خدا کے ڈر اور خوف کو ہماری زندگی میں لاتی ہے اور ایسے کردار کو سامنے لاتی ہے کہ خدا کیا کرتا ہے خدا راست بازوں کو چنتا ہے ان سے ہم کلام ہوتا ہے اور ان کی زندگیوں میں بڑے بڑے کام لیتا ہے. یوسف عام شخص تھا بڑھئی کا کام کرنے والا ترخان تھا
लोहारों का काम करता था, फर्नीचर का काम करता था, लेकिन उसे खुदा चुनता है और उसे ईमानदारों में ज़ाहिर करता है, उसे बड़े ओहदे पर ले जाता है। हालांकि वो बहुत पढ़ा लिखा नहीं था, अनपढ़ शख्स था, लेकिन खुदा उसे चुनता है उसकी रास्तबाजी के सबब से, उसके अच्छे चाल चलन के सबब से। आज खुदा आपकी जिंदगी में बड़ा काम कर सकता है, लेकिन जब आप अपनी जिंदगी को बदलोगे, आप रास्तबाजी की राह पर चलोगे, आप ईमानदारी पर चलोगे, आप खुदा के खौफ में और डर में रहोगे, आप उसके हुक्मों पर अमल कर अपनी जिंदगी को जाहिर कर सकते हो, तो खुदा आपको भी चुन सकता है। खुदा आपकी जिंदगी को बदल सकता है, आपकी जिंदगी के हालात बदल सकता है, लेकिन उसके पीछे क्या है? रास्तबाजी, ईमानदारी, वफादारी, खुदा की इबादतें, खुदा की रियाजतें, उसके सामने सजदे, उसके साथ उसकी इबादतें। आओ यीशु मसीह की पैदाइश पर, हजरत ईसा की पैदाइश पर हमारा किरदार कैसा है? क्या खुदा हमसे हम कलाम हुआ है या हमें भी दुनियावी ख्वाब देखते हैं? क्या खुदा अभी भी हमसे दूर है? हम इस हजरत ईसा की पैदाइश पर, यीशु मसीह की पैदाइश पर हम अभी भी और इब्लीस के जकड़े हुए लोग हैं। अभी भी हमें ख्वाब में सांप और इब्लीसी पहरे नजर आते हैं, तस्वीरें बदरुएं नजर आती हैं। अगर हम इन सारी चीजों से भरे पड़े हैं तो आओ हम आगे बढ़ते हैं। खुदा का कलाम बताता और सिखाता है, योएल की किताब में लिखा है, इन दिनों के बाद ऐसा होगा, इधर पेंतिकोस्त पर यह बात जाहिर होती है कि तुम्हारे बेटे बेटियां रोया देखेंगे और तुम्हारे बूढ़े ख्वाब देखेंगे। आओ हम दुनिया के ख्वाबों से बाहर निकले, हम इब्लीस के गुनाहों से, इब्लीस के ख्वाबों से बाहर आए और वो खुदा के ख्वाब देखना शुरू करें, रास्तबाजी के ख्वाब देखना शुरू करें, वो पशीदा राज हम पर जाहिर करना शुरू करें, वो हम पर वो सारे छुपे हुए राज जाहिर करना शुरू करें, ताकि हमारी जिंदगी रास्तबाजी की जिंदगी खुदा में बढ़ती और तरक्की करती जाए। और सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और दुआ करेंगे। अपनी जिंदगी पर ध्यान दें, अपने चाल चलन पर ध्यान दें। मैं कैसा हूं, मैं कैसी हूं? अगर आप अभी तक गुनाह में जिंदगी गुजार रहे हैं, आपकी जिंदगी में रास्तबाजी नहीं है, आपकी जिंदगी में ईमानदारी नहीं है, आपकी जिंदगी में खुदा से दूरी है, आप अभी तक नमाज नहीं पढ़ते, अभी तक आप खुदा को सजदे नहीं करते, अभी तक आपने खुदा को अपना निजता कबूल नहीं किया, तो आओ आज अपनी जिंदगी पर ध्यान दो, ख्याल करो कि वो खुदा कैसा खुदा है। हालेलुया। आओ अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और दुआ करना शुरू कर लीजिए। अपनी जिंदगी पर ध्यान दें, मेरी जिंदगी कैसी है, मैं किस मजहब से हूं और मेरा किरदार कैसा है, मेरा चाल चलन कैसा है, मेरा बोल चाल कैसा है, मैं कैसी जिंदगी गुजार रहा हूं। मैं तो झूठ बोलता हूं, मैं तो गुनाह करता हूं, मैं तो बेईमानी करता हूं, मैं तो रिश्वत लेता हूं, मैं तो रिश्वत देता हूं। और आज अपनी जिंदगी की तरफ ध्यान दो। मैं तो नशे में हूं, मैं तो नशा करता हूं,